Start with the second part of this chapter. जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वो लेटर, जो लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था, हम वो लेटर पढ़ेंगे कि क्या ऐसा स्पेशल हुआ था उनके साथ जो वो हमें बताना चाह रहे हैं. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. So, dearest Connie, so what is the name of Mrs. Jim McPherson? Connie is her name. So, हमारे जिम मैकफर्सन लिखते हैं, I write to you in a much happier frame of mind. Frame of mind मतलब state of mind. मतलब कि मैं एक बहुत ही खुश मिजाज से, एक बहुत ही अच्छे मूड में ये लेटर लिख रहा हूँ. Because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. क्योंकि अभी कुछ ऐसा कमाल का, बहुत ही अच्छी चीज हुई है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. We were all standing to in our trenches. Standing to का मतलब क्या है? Taking positions, like it is written in the glossary, कि हम सब कहाँ खड़े हुए थे? Trenches में. Now trenches क्या होते हैं? जब भी लोग वॉर फ्रंट पर होते हैं, जहाँ लड़ाई हो रही होती है, तो वो लोग छोटे छोटे गड्ढे उन्होंने बनाए होते हैं अपने हाइट के. उन गड्ढों के अंदर घुसकर वो हमेशा गन की हेल्प से अपने एनिमीज के ऊपर एम करते हैं. तो ट्रेंचेस का मतलब होता है जो गड्ढे उन्होंने खोद रखे थे. सो ही सेज कि हम सब अपने अपने ट्रेंचेस में, यानी अपने अपने गड्ढों में अपनी पोजीशंस लेकर खड़े हुए थे येस्टरडे मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी. It was crisp and quiet. Crisp का मतलब क्या है? Quiet we all know, शांत. Crisp का मतलब है very refreshing. बहुत ही fresh, बहुत ही शांत सुबह थी. As beautiful a morning as I have ever seen. इतनी सुंदर मॉर्निंग थी वो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता. As cold and frosty as a Christmas morning should be. और उतनी ही ठंड और उतनी ही frosty का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा it was a lot of cold, बहुत ज़्यादा कोहरा था उनके आसपास, जितना कि अक्सर क्रिसमस मॉर्निंग में होता है. क्रिसमस इज सपोज टू बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, ऐसा माना जाता है. तो बहुत ठंड थी उस दिन. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Now, what is this it that Jim is talking about? वो हमें बोल रहे हैं, यानी कॉनी को लिख रहे हैं रादर, कि जिस भी इंसिडेंट के बारे में वो अब कॉनी को बताने वाले हैं,
ही सेज कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि उसकी शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी, बट द ट्रूथ, मगर सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि उस चीज की शुरुआत हमने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने की थी। ना फ्रिट्स एंड टॉमी, ये दो टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे इस लेटर में। ना फ्रिट्स क्या है? फ्रिट्स इज अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर, एक निक नेम है जो कि जर्मन सोल्जर्स को दिया गया है। लाइक आई टोल्ड यू, ये किसके बीच में लड़ाई हो रही है? जर्मन्स और ब्रिटिश लोगों के बीच में। सो जर्मन सोल्जर्स को निक नेम दिया गया है फ्रिट्स, और ब्रिटिश लोगों को, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको निक नेम दिया गया है टॉमी। सो ही सेज कि मैं चाहता तो था ये तुम्हें बताना कि इसकी शुरुआत हमने की थी, लेकिन हमने नहीं, जर्मन सोल्जर्स की तरफ से ये शुरुआत हुई थी। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. He says कि सबसे पहले हमने देखा कि कोई हमारी ऑपोजिट साइड, अब ऑब्वियसली क्योंकि ये लड़ रहे थे तो ब्रिटिश और जर्मन्स ऑपोजिट साइड में थे, तो हमारे जो जिम मैकफर्सन है वो कॉनी को बताते हैं कि हमें हमारी ऑपोजिट साइड से किसी के वाइट फ्लैग को वेव करने की, यानी कि लहराने, कोई लहरा रहा था, हमें दिखा। वाइट फ्लैग आई होप आप सबको पता है, वॉर के ड्यूरेशन में जब सफेद झंडा लहराया जाता है, सो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ पीस, शांति का प्रतीक होता है वो। तो उन्हें दिखा कि सामने से ट्रेंचेस में से, जिन गड्ढों के अंदर सोल्जर्स घुसे पड़े थे पोजीशंस में, उसमें से कोई वाइट फ्लैग लहरा रहा है। Then they were calling out to us from across no man's land. और फिर हमने देखा कि कुछ लोग, यानी जर्मन सोल्जर्स, नो मैन्स लैंड पर खड़े होकर हमें बुला रहे थे और हमें बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। नाउ व्हाट इज अ नो मैन्स लैंड? आपने ये टेलीविजन्स में देखा होगा, हमेशा क्या होता है, सपोजिंगली this is the side of one army and this is the side of another army. हमने टीवी में देखा है, बड़े बड़े फेंसेस होते हैं और एक साइड एक आर्मी होती है, दूसरी साइड दूसरी आर्मी होती है। हमेशा दो आर्मी के बीच में एक जमीन होती है, एक प्लेन पीस ऑफ लैंड होता है, जो ना एक साइड का होता है ना दूसरी साइड का होता है। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश एंड द जर्मन आर्मी। तो अगर यहाँ पर हमारी ब्रिटिश आर्मी है और यहाँ पर हमारी जर्मन आर्मी है, द पार्ट ऑफ द लैंड, द पीस ऑफ द लैंड विच इज इन द मिडल डज नॉट बिलोंग टू आइदर ऑफ देम, वो दोनों में से किसी को भी बिलोंग नहीं करता है, और वो एक कॉमन पीस ऑफ लैंड है जिसको बोला जाता है नो मैन्स लैंड। सो नो मैन्स लैंड पर ना तो ब्रिटिशर्स का कोई अधिकार था, ना ही जर्मन्स का कोई अधिकार था, वो दोनों का कॉमन पीस ऑफ लैंड था। तो जिम ने देखा कि नो मैन्स लैंड से कुछ जर्मन्स उनको बोल रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. हमें जो ब्रिटिश के लोग थे, he said, when we had got over the surprise, जब उन्होंने ये चीज देखी, ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा शॉक लगा ये देखकर कि उनके एनिमीज जो हैं वो वाइट झंडा लहरा रहे हैं और उनको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। तो जब उनका ये शॉक थोड़ा सा दूर हुआ, जब वो थोड़ा सा अपने सेंसेस में आए, तो उनमें से कुछ लोगों ने शाउट बैक किया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। तो कुछ लोगों ने वापस जवाब दिया हैप्पी क्रिसमस का कि सेम टू यू। आई थॉट, जिम को ये लगा दैट वुड बी दैट, कि बस एक दूसरे को विश कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। एंड इसी तरीके से सबने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया।
But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. Grey coat, ये क्या है? This is the uniform of the German soldiers. जो जर्मन सोल्जर्स हैं ये उनकी यूनिफॉर्म है, ग्रे कलर की बड़ा सा कोट था जो उनके यूनिफॉर्म के अंदर आता था आर्मी के मेन की। सो उन्होंने ग्रे कोट पहना हुआ था एंड जिम ने देखा कि एक सोल्जर अपने ट्रेंच से बाहर आकर वाइट फ्लैग लहरा रहा है। नाउ वॉर फ्रंट में ट्रेंचेस से बाहर आना बहुत डेंजरस माना जाता है, बिकॉज जब तक आप ट्रेंच के अंदर हैं आप पूरे तरीके से ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, बट द मोमेंट यू कम आउट ऑफ इट आपको कोई भी कहीं पे भी शूट कर सकता है। तो एक जर्मन सोल्जर बाहर आया और वाइट फ्लैग उसने लहराना शुरू किया। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। तो ब्रिटिश साइड से किसी ने चिल्लाकर बाकी के सोल्जर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया, डोंट शूट लैड्स। लैड्स मीन्स बॉयज, कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, बॉयज नोबडी विल शूट। एंड नो वन डिड, किसी ने भी गोली नहीं चलाई। Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the men. It's a trick, but it wasn't. और फिर एक के बाद एक सारे के सारे फ्रिट्स यानी सारे के सारे जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो ट्रेंचेस से बाहर निकलकर पैरापेट पे खड़े हो गए। पैरापेट क्या है? दैट पीस ऑफ लैंड, ट्रेंचेस से बाहर निकलकर जो जमीन था धरती का उसके ऊपर वो लोग खड़े हो गए। हमारे जिम ने बाकी सारे जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको बोला दैट कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने सर थोड़े से नीचे कर लो, ये लोग हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहे हैं, ये लोग हमारे साथ कुछ ना कुछ झोल करने वाले हैं। बट इट वॉजंट, बट उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.